پھٹتے آموں کا کیس۔ یہ کتاب دراصل انگریزی زبان میں شائع ہوئی تھی، لیکن اس کا اردو ترجمہ 2020 میں سید کاشف رضا نے کیا ہے۔ اس کتاب کے مصنف محمد حنیف ہیں، جو کہ معروف کالم نگار، صحافی اور مصنف ہیں۔ پتہ نہیں ان حرامی اسکواڈرن لیڈروں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو ایک تہہ خانے میں بند کر دیں، اپنے بدبودار منہ آپ کے کان سے لگا دیں اور آپ کی ماں کے بارے میں چلا کر کچھ فرمائیں تو انہیں ہر جواب مل سکتا ہے۔ یہ لوگ عمومی طور پر ایک اداس قسم کی نسل ہوتے ہیں۔ وہ لیڈر جن کے پاس قیادت کے لیے کوئی اسکواڈرن نہیں ہوتا، یہ ان کی اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی کمی ہوتی ہے، جس کے سبب وہ اپنے کیریئر کے وسط میں ٹھہرے رہ جاتے ہیں اور ان کے پاس ایک تربیتی ادارے سے دوسرے تربیتی ادارے کو جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہ جاتا۔ آپ انہیں ان کی ڈیلی اور نیچے لٹکی ہوئی بیلٹوں سے پہچان سکتے ہیں جو ان کی گگڑوں کے وزن تلے پسی جا رہی ہوتی ہے، یا پھر ان کی ٹوپیوں سے جنہیں وہ بہت احتیاط سے سر پر ٹکاتے ہیں تاکہ ان کا چمکدار گنج چھپ سکے۔ ان کے ہاں پارٹ ٹائم MBA کرنے اور نئی زندگی کی شروعات کرنے کی آرزو نہ ہو سکنے والی ترقیوں اور پینشن پلان کے ساتھ ہم قدم رہنے کی جستجو کرتی رہتی ہے۔ ذرا مجھ پر ستم ڈھانے والے کے سینے پر اس کی وردی والی شرٹ کی بائیں جیب سے اوپر فروٹ سلاد کی ترتیب ملاحظہ کریں تو آپ اس کی ساری سرگزشت پڑھ لیں گے۔ ایک چھاتا بردار کا مٹا مٹا سا میڈل لینے کے لیے اسے بیرک سے ضرور نکلنا پڑا۔ میڈلوں میں پہلی کلی قطار میڈل تو پاس آئے اور اس کے سینے سے چپک کر رہ گئے۔ وہ اسے اس لیے مل گئے کیونکہ وہ ان دنوں حاضر سربست تھا۔ آزادی کے 40ویں سالگرہ کا میڈل، اسکواڈرن کی سالگرہ کا میڈل، آج میں نے مشت زنی نہیں کی کا میڈل۔ پھر دوسری قطار ہے جس میں اس کی اپنی سخت محنت اور لیڈرشپ کی بھی پھل موجود ہے۔ ایک میڈل اسکواش ٹورنامنٹ کرانے کے لیے اور ایک میڈل اس جنگ کے لیے جو در حقیقت ہفتہ شجرکاری تھی۔ یہ لیڈر جس نے اپنا منہ میرے کان سے لگا رکھا تھا اور جس کے ذہن پر میری ماں سوار ہے، مکہ میں مفتہ لگا چکا ہے اور اس نے ایک حج میڈل بھی سجا رکھا ہے۔ جیسا کہ وید کہا کرتا تھا، اللہ کی شان ہے، ہر بندر کے لیے پور و غلمان ہے۔ سیکنڈ OIC اپنے بدبودار سانسوں اور متواتر چیخ و پکار سے مجھے توڑنے کی کوشش کر کے اپنی پہلے ہی برباد شدہ زندگی کو مزید برباد کر رہا ہے۔ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ میرے کان میں جو گوبر گسیڑنے کی کوشش کر رہا ہے اس میں سے کچھ میں نے ہی گڑا تھا؟ کیا اسے نہیں معلوم کہ شگری خود کیا کر سکتا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ مجھے تو آدھی رات کے وقت دوسرے اسکواڈرن سے بلاوے آتے تھے کہ نئے آنے والوں کی ماؤں کے بارے میں اپنے 3 منٹ کے خطاب سے انہیں روجنے پر مجبور کر دوں؟ کیا وہ واقعی سمجھتا ہے کہ اگر 5 کی قوت سے بھی ماں کو گالی دی جائے تو اس آدمی کے لیے اس کے کوئی معنی ہو سکتے ہیں جو صدر کی سالانہ انسپیکشن سے ایک کمیشن آفیسر بننے سے بس کچھ ہی ہفتے دور ہو؟ تھیوری بہت ہی سادہ سی تھی۔ ہر اچھے سپاہی ایسے آوازوں کو بند اور اپنے اظہارات کو ان کے سامنے کے معنی سے جدا کرتا سیکھ لیتا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آپ کی ماں سے متعلق وہ والی بات کہتے ہیں تو ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، اور مجھے یقین ہے کہ خواہش بھی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی ماں کے ساتھ وہ کچھ کریں جسے کرنے کی خواہش کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ وہ یہ گالی اس لیے دیتے ہیں کیونکہ یہ تیز آگ کی طرح منہ سے نکلتی ہے اور سننے میں اچھی لگتی ہے اور اس میں تخیل سے کوئی کام نہیں لینا پڑتا۔ گالی میں سے ماں کا لفظ جو آپ کے کان سے چپکے ہوئے ان کے ہونٹوں سے نکلتا ہے کچھ دیر آپ کے دماغ میں گھومتا ہے اور بس اتنی سی بات تو ہے، انہوں نے آپ کی بیچاری ماں کو دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ جو ان گالیوں کی اونچی آواز سے ہی ٹوٹ جائے اسے چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹے سے گاؤں میں ہی بیٹھا رہے اور اپنے ابا کی بکریاں چرایا کرے۔ پھر اسے چاہیے کہ حیاتیات کی تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بنے اور اپنی زندگی میں جتنا حرام کا چین اور سکون درکار ہے حاصل کرے، کیونکہ ایک سپاہی کی حیثیت سے آواز ہی وہ پہلی چیز ہے جس کے خلاف دفاع کرنا آپ کا سیکھنا پڑتا ہے، اور ایک افسر کی حیثیت سے آواز ہی وہ پہلا ہتھیار ہے جس سے آپ پر حملہ کرنا سیکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سائلنٹ ڈرل اسکواڈ کے سپاہی ہوں تو ایسا نہیں ہوتا۔ ذرا صبح کی ڈرل کے دوران پریڈ اسکوائر پر نظر دوڑائیں اور دیکھیں اس میں کس کی حکمرانی ہے، کس کا حکم چلتا ہے۔ یہاں ہم میں سے 1000 سے زائد لڑکے موجود ہیں، 13 کروڑ کی آبادی میں سے منتخب، جنہیں ایسے کڑے نفسیاتی اور جسمانی امتحانات سے گزارا جاتا ہے جس میں 100 درخواست دہندگان میں سے صرف 1 کامیاب ہوتا ہے۔ اور جب ہماری قوم کو یہ کریم، جیسا کہ ہمیں متواتر یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم ہیں، یہاں پہنچتی ہے تو ان کی قیادت کون کرتا ہے؟ وہ جس کی آواز سب سے اونچی ہو، جس کا گلا سب سے صاف ہو اور جس کا سینہ پھیل کر ایسے کمانڈ دے سکے جو صبح نکلنے والے کبوں کو حیران کر دے اور ضدی ترین کیڈٹوں کو اپنے گھٹنے کمر تک لانے پر مجبور کر دے۔ جب اپنی ایڑیاں کنکریٹ کے فرش پر ماریں تو پوری دنیا ساکت و سامت ہو جائے۔
कम से कम मैं यही समझता था इससे पहले कि लेफ्टिनेंट बेनन अपनी अंदरूनी आवाज़, साइलेंट कमांड और सब सॉन्ग ड्रिल तकनीक से मुतल्लक थ्योरियाँ लिए आ पहुँचा। कमांड के साथ की जाने वाली ड्रिल तो बस यही होती है, बस एक ड्रिल। बेनन ये कहने का बहुत शौकीन है, कमांड के बगैर ड्रिल एक आर्ट है। जब आप अपनी ज़िंदगी की ऊंची तरीन सतह से कोई कमांड देते हैं तो आपकी आवाज़ सिर्फ आपकी स्क्वाड्रन के लड़के सुनते हैं, लेकिन जब आपकी अंदरूनी आवाज़ सरगोशी करती है तो देवता भी नोटिस लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बेनन को किसी देवता पर यकीन हो। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ मुझसे मिलने आएगा। मुझे नहीं लगता कि उसे इस सेल में आने देंगे। सेकंड OIC मेरी माँ के साथ अपनी मसरूफियत के बाद थक चुका है और मैं महसूस कर रहा हूँ कि समझदारी से काम लेने की एक इल्तिजा उसके अंदर राह बना रही है। मैं आने वाली कौम की करीम वाली तकरीरों को रोकने के लिए अपने पेट के अज़लात जकड़ लेता हूँ। मैं उल्टी नहीं करना चाहता। सेल छोटा है और मुझे नाम नहीं मालूम कि मुझे इसमें कितना अरसा रहना पड़ेगा। तुम हमारी कौम की करीम हो, वो अपना सर हिलाते हुए कहता है। तुम हमारी एकेडमी का फख्र रहे हो। मैंने हाल ही में तुम्हें एजाजी तलवारें देने की सिफारिश की है। तुम उसे सदर पाकिस्तान से वसूल करने वाले हो। तुम्हारे पास 2 सारे रास्ते हैं। 4 हफ्ते में एजाज के साथ ग्रेजुएशन करो या फिर ढोल की आवाज़ पर फ्रंट रोलिंग करते हुए बाहर निकल जाओ। कुल तालियां तालियां, टोनी सिंह स्टाइल। वो किसी कवाली के कोर्स में भारतीय फिल्म के किसी एक्स्ट्रा अदाकार की तरह अपने हाथ 2 मरतबा आपस में बजाता है। उन्होंने टोनी सिंह के साथ भी यही किया था। बेचारे बेवकूफ़ को ढोल ताशों के साथ बाहर निकाल दिया। मुझे कभी मालूम नहीं हो सका कि टोनी सिंह आखिर इस्लामी जमहूरिया का एयरफोर्स में क्या कर रहा था, बल्कि हमें तो उससे सर टोनी कहना पड़ता था क्योंकि वो हम में से 6 कोर्स सीनियर था। वाहिद टोनी जिसे मैं जानता था वो हमारे पड़ोसी का कुत्ता था, और वाहिद सिंह जो मैंने देखा था वो अपनी तारीख की निसाबी किताब में दिखाई देने वाला एक काना महाराजा था जिसने कुछ संधियाँ पहले पंजाब पर हुकूमत की थी। मेरा ख्याल था कि तकसीम ने सारे टोनियों और सिंघों का बंदोबस्त कर लिया होगा, लेकिन बज़ाहिर मुझको खबर नहीं हुई थी। टोनी सिंह को उस वक्त भी खबर न हुई जब उन्होंने उसके ड्रम में एक ट्रांजिस्टर रेडियो पाया और उस पर जासूसी का इल्ज़ाम लगा दिया। सर टोनी ने अपने दफा में टॉप ऑफ द पॉपिस बनने का बहाना बनाया। उन्होंने उस पर लगाया जाने वाले इल्ज़ाम कम करके गैर अफसराना रवैये तक महदूद कर दिया, लेकिन उसे ढोल ताशों के साथ निकाल कर बाहर करके ही रहे। एक अकेला ढोलची, एक कारपोल जो सारी जिंदगी एकेडमी के सबसे बड़ा ढोल उठाकर अब खुद भी ढोल जैसा ही लगता था, आगे आगे चला। वो थर्ड की मार्चिंग धुन पर ढोल बजाता गया। हम लड़कों में से 1000 से ज्यादा ईगल्स एवेन्यू के दोनों तरफ कतार बनाए खड़े थे जो गार्ड रूम से मेन गेट तक जाती है। आसान बॉश कमांड सुनाई दी। टोनी सिंह इसी गार्ड रूम में चंद रातें गुजारने के बाद बाहर निकला। उसके सर पर उस्तरा फिरा हुआ था, लेकिन उसने अपनी वर्दी अभी तक पहन रखी थी। वो सर ऊंचा किए खड़ा था और उसने इधर उधर देखना गवारा न किया। तालियां कमांड सुनाई दी। हमने आहिस्तगी से तालियां बजाना शुरू की। सेकंड OIC ने टोनी की बेल्ट उतारी और उसके कंधे पर से रिंग हटाए और फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाकर सर टोनी के कान में कुछ कहा। सर टोनी अपने घुटनों के बल झुक गया, अपने दोनों हाथ सड़क पर रखे और अपना गंजा कर दिया जाने वाला सर जमीन से लगाए बगैर फ्रंट रोल कर गया। चूतिए की गाफ आसमान की तरफ उठी हुई थी, तब भी वो डेढ़ होशियार बनने की कोशिश कर रहा था। उसका सफर तकलीफ दे हद तक सुस्त रफ्तार था। ढोल की आवाज कुछ देर बाद नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। कुछ कैडेटों ने दूसरों से ज्यादा जोश जज्बे के साथ तालियां बजाई। मैंने भी एक तरफ निगाह दौड़ाई और उबैद को अपने आंसू रोकने के लिए सख्त कोशिश करते हुए देखा। सर मैं खुदा की कसम खाता हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं कैडेट उबैद कहाँ गया है। मैंने ले जाने और उसके मुंह पर थूक देने के दरमियान एक नजर न आती हुई लकीर पर चलने की कोशिश करते हुए कहता हूँ। सेकंड OIC घर जाना चाहता है। घरेलू तशद्दुद और बेवाज सीरियस के साथ एक शाम उसे बुला रही है। वो मेरा बयान मेरे सामने ले लाता है। तुम्हारे पास ये सब सोचने के लिए एक रात है। कल ये मामला कमांडेंट के पास चला जाएगा और उससे अपने गायब हो जाने वाले लड़कों से ज्यादा नफरत अगर किसी चीज से है तो वो है उन गायब हो जाने वालों की होशियारी करने वाले साथियों से। वो सदर के दौरे का बेचैनी से इंतजार कर रहा है। हम सब इस दौरे के मुंतजिर हैं, इसे मत जाओ। वो जाने के लिए मुड़ता है। मेरे जिस्म का बेलाई हिस्सा ढीला पड़ जाता है। वो दरवाजे के हैंडल पर एक हाथ रखता है और वापस मुड़ता है। मेरे जिस्म का बालाई हिस्सा एक बार फिर होशियार पोजीशन पर आ जाता है। मैंने एक बार तुम्हारे वालिद को देखा था, पक्का सफाई था वो, जरा अपने आप को देखो। उसके होंठों पर एक तंजी या मुस्कुराहट उभरती है। तुम पहाड़ी लड़के इसलिए खुशकिस्मत हो क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर बाल नहीं होते। मैं इसे सल्यूट करता हूँ और इस दौरान अपनी अंदरूनी आवाज दबाने के लिए अपनी साइलेंट ड्रिल की तमाम तर मशक से काम लेता हूँ जो ये कह रही है, तेरी भी माँ को ही हूँ। मैं एक लम्हे के लिए सोचता हूँ कि उबैद इस सेल में क्या करता। पहली चीज जो उसे इस सेल में परेशान करती वो सेकंड OIC की छोड़ी हुई बदबू होती। ये जली हुई प्याज, घर की बनाई हुई और बू छोड़ जाने वाली वही देसी बदबू, शक की बू, उन चीजों की बू जो मंसूबे के मुताबिक अंजाम पा सकी।
और हमारा उबैद हमारा बेबी ओ समझता है कि क्लाई पर पॉइजन का छिड़काव करने और एक पुराना नगमा सुनने के बाद दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जिससे न निपटा जा सके। उसकी मासूमियत वैसी ही है जैसे किसी तन्हा पसंद फाख्ता की मासूमियत, जो शाख से दूसरी शाख तक उड़ती फिरती है और उनके परों की नाजुक फड़फड़ाहट और उनका चंद मिलीमीटर खून उन्हें जमीन की कशिश शक्ल के मुखालिफ महवे पर पाज रखता है, जो हर एक को अपनी गलती सड़ती हुई सतह तक खींच लाना चाहती है। इस सेकंड OIC के खिलाफ उबैद के पास क्या चांस होता? बेबी ओ, कदीम शेरों की सरगोशियां करने वाला, पुराने सुनहरे गीत गुनगुनाने वाला, आखिर वो सिलेक्शन के अमल में कामयाब कैसे हो गया? आखिर वो अफसरी के टेस्ट में पास कैसे हो गया? वो नकली जंगल में जिंदा रहने की टेस्ट में अपने साथी उम्मीदवारों की क़यादत कैसे कर पाया? उसने नफ्सियाती प्रोफाइल टेस्ट के दौरान कौन सा भरम दिखाकर कामयाबी हासिल की? वो तो बस उसकी पतलून उतार कर उसका रेशमी अंडरवेयर ही देख लेते तो काफी होता, जिसके कमरबंद पर छोटे छोटे दिल गड़े हुए थे। कहाँ तुम बेबी हो? लेफ्टिनेंट बेनन ने हमें सबसे पहले सालाना वैरायटी शो में देखा था, जहां हम फाख्ता और रकाब वाला रुक्स कर रहे थे। इससे पहले की बात है जब कमांडेंट ने ऐसी वैरायटी शो खत्म करके कुरान स्टडी सर्कल और डिनर के बाद की अदबी सरगर्मियां शुरू करवा दी। थर्ड टर्म के लड़कों की हैसियत से हमें तमाम वाहियात किस्म के गानों पर परफॉर्म करना पड़ा, जिसमें हमें फैंसी ड्रेस पहनना था और हमारे सीनियर जॉर्ज माइकल के गानों पर लिप सिंक कर रहे होते थे। हम एक बहुत मर्दाना और इनकलाबी किस्म की नज़म की नकल कर रहे थे। मैं एक इस्तेमारी अकाब की शक्ल में उबैद का तीसरी दुनिया का फाख्ता पर चिपटा। उसने अपना दफा किया और आखिरी हिस्से में मेरे सीने पर बैठकर अपने कार्डबोर्ड से बनी चूंज की मदद से मेरी गर्दन से खून चूसने लगा। बेनन स्टेज के पीछे हमसे मिलने आया जब हम अपने मुज़िका खेज पर उतार रहे थे। हो, तुम ज़ोंबियों को तो हॉलीवुड में होना चाहिए। उसकी हाथ की गिरफ्त गलू आमेज और सख्त थी। गुड शो, गुड शो। वो बेद की जानब मुड़ा और एक हेंगी की मदद से अपने गालों पर लगी ब्राउन बूट पॉलिश साफ कर रहा था। यार, तुम इस जंगी पेंट के बगैर बच्चे ही लगते हो, बेरन ने कहा। नाम क्या है तुम्हारा? बैकग्राउंड में साटोनी के लेस विस्पर्स इतने बेसुरे लते से गा रहा था कि मुकर्रीन को चलाकर एहतजाज करना पड़ा। अपनी लाल टोपी के नीचे बेरन का चेहरा किसी कोटे हुए चमड़े जैसा था। उसकी आंखें खोखले सब्ज तालाबों जैसी, जिन्होंने बरसों बारिश की एक बूंद भी न देखी हो। उबैदुल्लाह, मतलब क्या है इसका? अल्लाह का नौकर। उबैद ने ऐसे कहा जैसे उसे इस पर यकीन ना हो, जैसे वो ये वजाहत करना चाह रहा हो कि उसने अपने लिए अपना नाम खुद मुंतखब नहीं किया। आपके नाम का क्या मतलब है लेफ्टिनेंट बेनन? मैं उबैद की मदद को आया। ये सिर्फ एक नाम है, उसने कहा। मुझे कोई लेफ्टिनेंट नहीं कहता। तुम जैसे स्टेज के मामों के लिए मेरा नाम लॉर्ड बेनन है। उसने अपनी एड़ियाँ चटखाई और वापस उबैद की जानब मुड़ा। हम दोनों उसकी तवज्जो का मरकज़ बन गए। उसने अपने ओवर दी टॉप 2 अंगश सैल्यूट की रख उबैद की जानब किया और वो लफ्ज़ कहे जो उस लम्हे हमें अमरीकी फौज की अजीब व गरीब ज़बान का कोई हिस्सा लगे थे, लेकिन बाद में डाइनिंग हॉल की गपशप का हिस्सा बन गए थे। तुमसे स्क्वायर पर मुलाकात होगी बेबीओ। मुझे हसद महसूस हुआ, इस एहसास से कुर्बत की वजह से नहीं जो उन अल्फाज से फूटता था, बल्कि इस वजह से कि काश उबैद के लिए ये निकनेम मैंने न सोचा होता।